Jai Hind and welcome to Kesri Legalitics. My name is Rishabh Kesri, and in this video we will dive into the Insert tab and explore the powerful tool within it using practical examples. So let's get started. So let's start with Insert tab. When you press Alt N, the Insert tab is activated and the key tips of the tools appear right there so that you can access it from the keyboard. In the groups, you will find tables, illustrations, controls, charts, sparklines, filters, links, comments, text, and symbols. These all are very powerful tool, and you can uh, create many brief reports by the charts. You can visualize your data by the charts and compare comparison charts, and you can insert the objects so that you can visualize your data as you want. In the first group, you will see there's a table, and table contain the pivot table. Pivot table is a very powerful tool which summarize your large amount of data into the brief summaries by the few clicks. So, and also there is a table option. Table option is used to convert your data in the table form, so that by the formula and by the other charts you can create by the tables. Microsoft Forms. Forms are available only in Microsoft 365 subscriptions. So we can talk about this later because this is not available in the all the versions. So let's start with pivot table. Pivot table is used for converting large amount of data into the brief summaries. So taking this data where we can put our pivot table, and this data contain all the information so that we can easily understand the pivot table. So the pivot table, in the pivot table options, you will see there's an option to get from table range, data source, and data model. Table and range means when this data is converted into table, then it can fetch data from table, and the range is independent range, so that you can choose it from anywhere to anywhere. So as you can see, we have the data, and the last cell of our data is uh, M29,420. This cell is from A1 to this cell. So when you insert the pivot table, you have to put your cursor into the table. When you can having your cursor outside the table, then when you insert the pivot table, the data is not automatically fetched that range. So in the range, when you insert the pivot table inside the range, when you cursor, then you will see that you can your pivot table automatically fetch your data from A1 to M29,420. So one more thing, when in your data, if there is a something gaps and blanks like that, and you are not choosing your data, not selecting your data manually, and you just hit enter, or sorry, hit insert table inside this option, then you will see it will taken only from A1 to M29. And similarly, when you press insert tab, when you your cursor in the below one table, then it will take it from A31 to last cell. So you have to ensure that your data is not infringed by the gaps and some other things, errors. And so if you manually select your data and then you insert the table, then you will see it will selected that data. And but you will also find some blank rules, blank fields inside the options. So as you can see, I have a blank cell right here. So when I put my data right here in the cell, then you will find there is also a blank option right here. So I will also tell you that how this blank cell will erase. So when you see in the data, I don't want this gap, so I delete that gap, and there is no changes in the table because it have to refresh every time when we change in the data. So you will see there is a two tabs were automatically inserted after the pivot table, and you will see there is a pivot table settings and tools available in this tab. So there's a refresh option. So if you refresh this, then you will see the blank automatically gone deleted, because it will refresh your data, and whatever changes you've done in the data, it will reflect in the pivot table after the refresh. One more thing, that if you insert the pivot table, you will see there is the option of new worksheet and existing worksheet. New worksheet is as I inserted the table, then it will insert it in the worksheet. When I choose existing worksheet, so I can independently choose where I have to put my data. So first of all, I choose the data.
And also there is one more shortcut for inserting the pivot table by the shortcut of menu sequence Alt N V T. Okay, then it will insert the pivot table. So if you select the existing worksheet, you can insert your data right wherever you want. Okay, and also the data model option is a very powerful tool where you can also you can analyze multiple tables, multiple ranges in one pivot table. You can control it from one table. So we will talk about this later when we talk about the pivot table separately in the one video. So if I hit OK, then you will see the pivot table inserted right here. Okay. So you can also see that the pivot table contain the name, which is pivot table 2, and the first one is the pivot table 1. And as you insert the pivot tables, it will named by the numeric, like pivot table 1, pivot table 2, and so on. Table 1, table 2. So let's delete the pivot table. So फिर हम देखते हैं कि इसमें जो pivot table options हम इससे लगाते हैं कि इसमें field आप कौन से enter कर सकते हैं. Like if I want to analyze my data by the party name and how much quantity it sold. So I've taken the item name in the column so that it will become the headings and the quantity in the value. As you can see, it will automatically take the sum of the quantity because we have the multiple numbers, and it is a number, so that it automatically take this as a quantity or as a sum. And if you didn't put the quantity and put the item batch, then we'll see it will count the item batch. So you can see that the data having the count of the bills, and quantity is the sum of the quantity. You can also change it from there, like this value settings. As you can see, there is a count option, sum option, average option. So you can change it from anywhere from there, and by the any calculation you want. Like if I choose count, then it will count only the numbers, not the sum of the quantity. Okay. You can also change it from right here. Right click करेंगे जब उसमें आप तो pivot table value feed settings में यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, या तो summarize show value as summarize value by sum. See. So अब इसमें ये देखते हैं कि हमारा डेटा कितना बड़ा आया है, क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत ही ज्यादा था. तो ये डेटा बहुत ही ज्यादा बड़ा है जिसे विजुलाइज करना पॉसिबल नहीं है. सो अब हम इसे थोड़ा समराइज करेंगे. समराइज करने के लिए जब आप देखेंगे कि हम ये जो हमारे पास हेडिंग है ये बहुत ज्यादा स्पेस ले रही है, तो हम इसे कंट्रोल स्पेस करके और फिर कंट्रोल शिफ्ट. हमेशा देखिएगा जब भी आपको किसी डेटा को सेलेक्ट करना हो तो आपका हाईलाइट वाला सेल, जैसे देखिए ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका हाईलाइट यहाँ पे होना चाहिए. सीधे यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस करते ही आपको यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट हो जाएगा. ऊपर से नीचे तक डेटा सेलेक्ट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आप अगर आप एक किसी सेल को एडजस्ट करते हैं तो आपके वो सारे कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे. ठीक है. अब आप जब देखेंगे कि ये सारा डेटा हमारा इसके अंदर आ चुका है, सो अब हम इस पे पूरी पूरी रो क्लिक करके ऑल्ट एच जो कि होम टैब एक्टिवेट कर देगा, एंड देन डब्ल्यू जो कि हमारा रैप टेक्स्ट कर देगा. रैप टेक्स्ट करते ही देखेंगे कि सारे डेटा हमारे मतलब सारे हेडिंग्स हमारे उतने ही कॉलम में एडजस्ट हो चुके हैं जितने हमें चाहिए थे. और इस चीज आपको मैं पिछले वीडियो में ये बताना भूल गया था कि हम क्विक एक्सेस टूल बार में अपने कुछ जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं उसे ऐड करते जाएंगे, सो दैट कि आप भी अगर उसे ऐड कर लेंगे तो डेटा को जब आगे हम डेटा एनालिसिस करेंगे तो उसे फास्टली कैसे करना है वो आप शॉर्टकट के थ्रू कर सकते हैं. सो होम टैब में आके हम जल्दी से कुछ टूल्स को ऐड कर लेते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं. आप राइट क्लिक करके किसी भी टूल को ऐड कर सकते हैं. जैसे कि आप देखेंगे हम बॉर्डर में अगर हम देखेंगे तो अंदर हमें जाना पड़ता है ऑल बॉर्डर्स करने के लिए, बट हम यहीं से राइट क्लिक करके इसे देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में एक्टिवेट कर लेंगे. इसे भी कर लेते हैं मर्ज एंड सेंटर, मिडल एंड सेंटर, तो कि हमारा ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा. मर्ज एंड सेंटर में सिर्फ मर्ज एंड सेंटर वाला ऐड करिए. रैप टेक्स्ट को ऐड कर लीजिए. कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में आपको ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट का ज्यादा काम पड़ता है, तो डुप्लीकेट ऑप्शन आप उसमें ऐड कर लीजिए. आपको देखिए मेनू के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे से बाहर से ही अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब बाहर से ही एक्सेस कर सकते हैं. सो तो आपको बहुत ही इजी पड़ जाएगा सब कुछ करना. और इंसर्ट टैब में आप जब देखेंगे कि शीट से रिलेटेड जितने भी इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शंस हैं वो आपको मेनू सीक्वेंस मतलब लेगेसी शॉर्टकट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं. तो क्विक एक्सेस टूल बार में लिमिटेड स्पेस है तो उतना ही रखिए जितना हमें काम है. जैसे रीनेम शीट भी हम अपने शॉर्टकट से के जरिए ज्यादा जल्दी कर सकते हैं. ऑटो फिट भले आप ऐड कर लीजिए. ऑटो फिट रो हाइट भी ऐड कर लीजिए, ये भी आपका सही रहेगा.
उसके बाद ऑटो सम की हमें जरूरत नहीं है, फिल की भी जरूरत नहीं है, डिलीट ऑल की भी इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादातर, क्योंकि अगर बाई चांस अगर वो आप डिलीट ऑल कर देंगे शॉर्टकट से तो वो आपको सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। गो टू स्पेशल में भी हमारा कोई ऑप्शन ऐड करने का होता है कि गो टू स्पेशल हम F5 से एक्टिवेट कर सकते हैं लाइक दिस, और ऑल्ट एस से। ठीक है, तो हमारे काफी डेटा जो हम विजुलाइज करना चाहते हैं वो हम ऐड कर चुके हैं। पेंट वाला भी ऐड कर लेते हैं, फिल सेल, ये भी हमारे काम को मतलब आएंगे इसमें जब हम डेटा को विजुलाइज करेंगे। तो अब आप जब देखेंगे कि हमारे कुछ ऑलमोस्ट ऑप्शंस ऊपर आ चुके हैं। अंडू और उसको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि वो तो आपका शॉर्टकट से हो जाएगा, कंट्रोल सेट कंट्रोल आर से। सो अब हमारा देखिए स्टार्टिंग, अगर आपको चाहते हैं कि हमें ये सब डेटा को किसी एक सीक्वेंस से हमें लगाना है, तो आप यहाँ राइट क्लिक करके कस्टमाइज टूल बार पे जा सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आप भी कई सारे टैब्स के टूल्स को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं, एक साथ उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि पॉपुलर कमांड्स हैं, कमांड इज नॉट इन द रिबन, जो आपके रिबन में नहीं है वो सब आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब वैसे फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा काम नहीं आते। ठीक है, लेकिन आप इसे ऐड करके अपने काम में ले सकते हैं। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल कमांड्स में सारे कमांड्स आ जाएंगे। और फिर अब हम चाह रहे हैं कि हम जैसे जो हमें ऑटोफिट ये सब का काम पड़ता है, ये सब बहुत जल्दी करना पड़ता है, तो हम ऑटोफिट कॉलम को फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे। तो अब हम इसे कंट्रोल सॉरी ऑल्ट 1 से एक्सेस कर सकते हैं। उसी के साथ इसे भी हम ऊपर सेकंड नंबर पे लेते आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में जैसे आपको कुछ ये स्किप करना चाहते हैं, तो लास्ट में मैं आपको इसका एक कस्टमाइजेशन फाइल मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसे आप इसके जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास ये ब्राउज हो जाएगा, तो यहाँ आप कहीं से भी डेटा आपको देखेंगे ये इस नाम से आपका रहेगा। तो एक्सपोर्टेड यूआई के नाम से आपका एक्सटेंशन रहेगा। इसे आप सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे और उसमें मांगेगा कि रीसेट करना है कि नहीं आपको, जो पहले आप रखे हुए हैं। तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ से अगर हम इसे ओपन करते हैं, तो ये मांगेगा कि हमारा पीछे का डेटा जो हमारा पहले का है उसे रिप्लेस करना है या उसे रहने देना है। तो इसे बैक कर दीजिए वापस से अभी के लिए। तो अब आप जब देखेंगे कि हम इस डेटा को विजुलाइज करना है, हमें थोड़ा सा समराइज करना है। तो अभी क्या है कि हमारे सारे जितने भी एंटायर 29,419 बिल हैं वो सारे इसमें आ गए हैं। लेकिन अब हमें पार्टी ग्रुप से या तो आइटम कैटेगरी से, आइटम कैटेगरी का एक यहाँ पे आइटम बना कैटेगरी बना लेते हैं लाइक दिस। सो अब हम चाहते हैं कि जो हमारा वाई से स्टार्ट होता है वो हम वाई सीरीज से लें, जो वी से स्टार्ट होता है वो वी सीरीज से लें। इसे बहुत ज्यादा वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली भी फ्लैश फिल के थ्रू भी कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप यहाँ करते हैं उसके बाद कंट्रोल ई दबाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो जो हमारा डेटा वी से स्टार्ट हो रहा है वो वी पे आ गया, वाई से स्टार्ट हो रहा है वाई पे आ गया। फ्लैश फिल आपका ये देखता है कि आपको कितने आपने किया क्या है पहले वाले सेल में, तो बस वो उसी के जस्ट जो भी सबसे क्लोज मैच होता है वो आपका कर देगा। उसने देखा कि मैं यहाँ पे वाई प्रेस किया तो इसके नेक्स्ट सेल में ये वाई है, तो वाई सीरीज ही होगा। तो बस सिंपली और नीचे सेलेक्ट ड्रैग सेलेक्ट करके इसे बस कंट्रोल ई दबा दीजिए आप। तब आप देखेंगे कि सारा आपका ये आपका हो चुका है। इसमें फ्लैश फिल करने के बाद आपको देखेंगे, फ्लैश फिल मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि कंट्रोल ई के अलावा आप फ्लैश फिल यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें आपको दिखा देगा कि ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यू एंटर ए कपल ऑफ एग्जांपल्स। सो जब भी आप कोई कपल ऑफ एग्जांपल्स आप इसमें डाल दीजिए कि कैसे डेटा आपको एंटर करना है, जस्ट उसी के थ्रू वो पूरा डेटा एंटर कर देगा। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि फ्लैश फिल करने के बाद ये जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे शो हो रहा है, ये अभी दिखाता है कि फ्लैश फिल हमारा एक्टिव है। इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो अंडू फ्लैश फिल, एक्टिव सजेशन और सेलेक्ट ऑल चेंजेस, ये सब आपको ऑप्शन आएंगे। तो इसे आप एस्केप के थ्रू हटा दीजिएगा, नहीं तो फिर ये उसके बाद भी चलता रहेगा। ठीक है, अब हमारा सीरीज यहाँ पे बन चुका है। कंट्रोल सॉरी ऑल्ट 4 से इसे हम सेंटर कर लेंगे। तो चेक करने के लिए अब आप जब देखेंगे कि आप कुछ कुछ डेटा आपके सही नहीं आए हैं। जैसे कि कारवां का, ठीक है हमें कारवां कारवां ही रखना है, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। एचपी हमारा हेडफोन्स से है तो वो वायरलेस उसी से स्टार्ट है। वी सीरीज आप जब देखेंगे तो सारे हमारे इसमें वी सीरीज के मॉडल्स हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। तो इससे क्या है, आप बहुत ही जल्दी, आपको एक एक करके टाइप करने की जरूरत नहीं कि आप बी सीरीज खोलो फिर बी को पूरा टाइप करो वाई खोलो। ये आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक्सेल को हमेशा अपडेट रखिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप नए वर्जन में काम करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। अब अभी आप जब देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फील्ड शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जब यहाँ पे एंटर कर रहे हैं डेटा, तो ही फिर सिंपली यहाँ से राइट क्लिक करिए, शो फील्ड्स का ऑप्शन यहाँ पे आएगा, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए, तो अब यहाँ पे वो आइटम कैटेगरी जो हमने ऐड करी है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो सिंपली रिफ्रेश दिस डेटा। रिफ्रेश ऑल तब करेंगे जब हमारे हमारे पास मल्टीपल पाइवट्स होंगे। उसके लिए भी ऑप्शन है कंट्रोल ऑल्ट एंड देन F5, एंड इसके लिए सिर्फ F5 सॉरी ऑल्ट F5। हमारा कैटेगरी आ चुकी है इसमें। अब हम इसे डालेंगे फील्ड ऑप्शन में, क्योंकि हमें इससे फिल्टर करना है। ठीक है, तो आइटम कैटेगरी से हमें फिल्टर करना है प्लस पार्टी ग्रुप से भी फिल्टर करना है।
और एक और ऑप्शन आप लगा लीजिए डेट का। ठीक है, अब देखिए इतने बड़े डेटा को हम सिर्फ ये 3 टैब से मैनेज कर सकते हैं, 3 ऑप्शन से। लाइक अगर हम पहला लगा लें आइटम कैटेगरी कि हमें टी सीरीज की सेल देखनी है कितनी है, ठीक है, तो हमारे देखिए यहाँ पे सारे टी सीरीज यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद पार्टी ग्रुप ले लेते हैं। पार्टी ग्रुप हम मान चलिए कृति की और कृति को लेते हैं, ठीक है। कृति का हमारा जितने भी टी सीरीज उसने सेल करी है वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद डेट में अगर हम जस्ट लगाएंगे तब आप देखेंगे कि ये ब्लैंक हो चुका है, क्योंकि कृति ने टी सीरीज 1/4 पे कुछ नहीं बेचा है। इस पे लगा लेंगे तो भी देखिए नहीं आएगा। सेलेक्ट मल्टीपल आप कर सकते हैं, तो सेलेक्ट मल्टीपल आप लगा सकते हैं इसमें अपने हिसाब से, चाहे तो आप फिल्टर भी कर सकते हैं डेटा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि इन सारे डेट्स में कुछ ऐसे डेट्स, 2 ऐसे डेट होंगे जिसमें इन 2 पार्टी ने हमारा ये सीरीज बेचा है, ठीक है। तो वापस से इसे ऑल कर लेते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब आप डेट देखेंगे तो ये आपका अलग अलग ही आएगा। अगर इसे आपको चाहते हैं कि ग्रुप वाइज आपको देखना हो तो फिर आपको इसे डेट से उठा के रो फील्ड में डालना पड़ेगा। रो फील्ड में आप जब देखेंगे तो ये अभी भी इसी तरीके से आ रहा है, तो इसे आपको पाइवट टेबल पे जाके ग्रुप सिलेक्शन करना, यहाँ पे क्लिक करिए पहले, फिर ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन में आपको इसे किस अकॉर्डिंग बांटना है। तो अभी हम चाह रहे हैं कि इसे मंथ अकॉर्डिंग बांटें, तो ओके करते ही जब आप देखेंगे कि ये हमारा मंथ के अकॉर्डिंग आ चुका है, ठीक है। तो इसे आप फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से भी इस तरीके से। बाकी नॉर्मल आपको जब डेट अगर आएगा तो वो डेट के अकॉर्डिंग ही बनेगा आपका, इसे हम ग्रुप कर दीजिए। तो अब हम इसे डेटा को, इससे हमारा बहुत ही दिक्कत हो रहा है कि हम इसे ऐड करने में, तो हम इसे इसका यूज करेंगे टाइमलाइन का। डेट फिल्टर में टाइमलाइन का बहुत अच्छा यूज होता है, इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन जब आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा में ये एनालाइज करेगा कि डेट फिल्टर हमारा कौन सा है। तो इसे प्रेस करते ही हमारा देखेंगे एक टाइमलाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब इस टाइमलाइन को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसे, ये देखिए सितंबर, अक्टूबर, जो भी डेट में आपको चाहिए फिल्टर करना। और उसके बाद मंथ ही नहीं, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो चाहे ईयरली आप सिलेक्शन कर सकते हैं डेटा का। अब इसे 2023 का उसमें डेटा है इसलिए वही शो कर रहा है। क्वार्टरली यूज कर सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, मतलब जैसे भी आप डेटा को अपने चाहें आप अपने समराइज कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस पार्टी के अकॉर्डिंग स्लाइसर लगा सकते हैं। टाइमलाइन पे देखेंगे आप तो जब ये टाइमलाइन इंसर्ट करते ही कई सारे ऑप्शंस में आ जाएंगे, जैसे इसको अलग अलग विजुअलाइजेशन में चेंज करना। रिपोर्ट कनेक्शन में अगर एक से ज्यादा पाइवट हैं और सब में अगर सेम आपके कंटेंट हैं, मतलब सेम डेट्स हैं, सेम अगर कोई अगर स्लाइसर लगा हुआ है तो कोई सेम कंटेंट होना चाहिए, तो वो आपका कनेक्शन यहाँ पे ऐड करते ही वो एक ही टाइमलाइन से दोनों पाइवट चलेंगे आपके। वो हम अपने सेपरेट वीडियो में इस चीज के बारे में देखेंगे। सो ये वीडियो सिर्फ हमारे इंसर्ट टैब के लिए है, तो सिर्फ इंसर्ट टैब के बारे में आपको हम टोटल एक छोटा सा हम पाइवट टेबल का ग्लिम्स दे रहे हैं आपको। तो अब जैसे कि आप इसमें हम देखते हैं कि डेट फिल्टर को हम यहाँ से हटा लेते हैं, पहले डेट फिल्टर हटा ही देते हैं, ठीक है। और पार्टी ग्रुप भी हटा दीजिए, कैटेगरी भी हटा दीजिए, ठीक है। अभी तो आपका डेटा पूरा पूरा नॉर्मल है। पार्टी ग्रुप इसमें से हट गया, एक सेकंड, पार्टी नेम लगा देते हैं, ठीक है। तो वापस से डेटा हमारा वैसा ही हो गया है। तो अब हम इससे पहले इंसर्ट करेंगे इसमें स्लाइसर। स्लाइसर में आप देखेंगे सारे ऑप्शन स्लाइसर आप एंटर कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। हम पहले लगा लेंगे पार्टी ग्रुप, फिर हमको दूसरा चाहिए आइटम कैटेगरी, ठीक है। इन दो का हमें चाहिए स्लाइसर। अब ये देखिए आपको स्लाइसर का ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम चाह रहे हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा दिख रहा है हमें, तो हम इतने पे इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं और इतने पे। बट हुआ क्या, अभी पूरा हमारा डेटा एक ही ऑप्शन का पूरे इतने बड़े से रेंज में आ गया। तो अब आप देखेंगे स्लाइसर की सेटिंग यहाँ पे, तो कॉलम को बढ़ाने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी ये सिलेक्टेड है, सॉरी, इसको सेलेक्ट करके देखिए आप इसे अपने अकॉर्डिंग और डेटा इधर एंटर कर लेते हैं, पेज, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए चूज कर सकते हैं कि कौन सा सीरीज हमें चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग आप फिल्टर हटाएंगे यहाँ से तो ये पूरा पूरा हट जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पार्टी ग्रुप चूज कर सकते हैं। पार्टी ग्रुप यहाँ लगा लेते हैं। आप एक साथ भी चूज कर सकते हैं दोनों स्लाइसर को सेलेक्ट करके। जैसे अगर आप दोनों अभी देखिए दोनों सेलेक्ट कर लें अगर हम, तब स्लाइसर की सेटिंग करेंगे तो वो हमारा एक साथ ही सेलेक्ट होगा, ये देखिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको अलग ही अलग करना है, या बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा थोड़ा सा अगर आपके पास एक से ज्यादा स्लाइसर हैं तो। देखिए अभी तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप कहीं काम करेंगे या कहीं आपको रिपोर्ट तुरंत तुरंत जनरेट करके देनी होगी, तो इन सब का शॉर्टकट आपको बहुत ही मैटर करेगा उस टाइम पे। अभी आप एक चीज और देखिए, जैसे हमारा शेप के अकॉर्डिंग अभी हमारा ये शेप ही है जो हमारे खुला हुआ है। तो अगर हम चाहें माउस से या इसे किसी भी तरीके से एडजस्ट करना हो या अपने कीबोर्ड से करना हो, हम माउस का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम इसे देखिए रिपोजिशन भी एरो के थ्रू कर सकते हैं। इसे शिफ्ट अगर हम प्रेस करके ऊपर नीचे अप एंड डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो इसका जो हाइट और हाइट आपकी एडजस्ट हो जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आप राइट एंड लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो ये आपका
विथ इसका एडजस्ट होगा, और सिंपली कंट्रोल शिफ्ट दोनों प्रेस करेंगे, और तब अगर आप करेंगे तो वो जो स्पीड है ज़्यादा से ज़्यादा स्किप होने की, वो आपकी बहुत ही रेयर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डेटा एडजस्ट कर रहे हैं, अब हम धीरे से इसे, मतलब पहले इसे हम हाइट को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम यहाँ पे, अब हम चाह रहे हैं हल्का सा, हमें धीरे छोटा सा ही ऐड करना है, तो बस दोनों प्रेस करके देन फिर इसको प्रेस करेंगे ताकि वो हमारा डेटा हिले ना। देखिए ज़्यादा भाग गया, तो इसीलिए हम कंट्रोल और वो प्रेस करके इसे एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप डेटा को फिल्टर कर लीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा एम सीरीज में ज़्यादा नहीं है, टी सीरीज हम लेते हैं, टी सीरीज को कृति को लेते हैं, ठीक है। एंड फिर अब इसमें हम टाइमलाइन डालते हैं। देखिए किसी एक सिंगल डेटा को एडजस्ट करने के लिए इतना आपको चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल से भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें मल्टीपल रिपोर्ट्स जनरेट करती हैं, मान लीजिए मैं आपको अगर जनरेट करना है कि कौन-कौन से लड़कों ने क्या-क्या बेचा, ठीक है? तो फिर आपको ये तुरंत-तुरंत रिपोर्ट जनरेट करने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर टाइमलाइन लगा लेंगे। टाइमलाइन हमारा ऑटोमेटिकली डेट फ़िल्टर कर लेगा, अगर वो डेट फॉर्मेट में नहीं है तो ये नहीं देगा। अब देखिए हम इसे बढ़ा लेते हैं इतना, इतने टाइम का हमें चाहिए। अब देखिए ये हमारा डेटा एक बहुत ही सीमित वे में आ चुका है, बहुत ही नॉर्मल एडजस्टेड हो चुका है। अब हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल करके पहले हम इसे सेंटर पे ले आते हैं, मिडल पे ले आते हैं, सेंटर पे ले आते हैं, ठीक है? ये हमारे देखिए सेंटर पे आ चुका है। अब हम इसे बॉर्डर लगा लेते हैं, ऑल्ट 2 करके, एंड फिर बोल्ड कर लेते हैं। पार्टी नेम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा पार्टी नेम के अकॉर्डिंग है। तो अब आप जो देखेंगे हमारा एक डेटा यहाँ पे बन चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे। इसे पहले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये ज़्यादा छोटा-बड़ा हो गया है। ठीक है, अब आप जब देखेंगे एक बहुत ही समराइज़ रिपोर्ट हमारे पास तैयार हो चुकी है। इसे प्रिंट आप करेंगे, यहाँ से आप पीडीएफ सेव कर लीजिए। आप एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे आपका ये आ रहा है, आपको इसे सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि हमारा उतना ही डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। प्रिंट ऑप्शन तो आप उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने से आप कर सकते हैं। शिफ्ट इन फिट इन वन पेज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखेंगे हमारा डेटा इतना हो चुका है, अब हम इसे पीडीएफ में सेव कर लेते हैं। ये सेव करते ही आपके पास एक प्रिंटेड फाइल खुल जाएगी। तो आप देखेंगे कि पीडीएफ आपका सिंपली एक जैसा रिपोर्ट आपको जनरेट हो जाएगा, जिसमें देखेंगे ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, एंड ग्रैंड टोटल रो के कॉलम में दोनों पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को जनरेट कर सकते हैं पाइवट के थ्रू। पाइवट में बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है इसका, और बहुत ही वाइड रेंज है। तो इसे हम सेपरेट वीडियो में इंसर्ट टैब को, सॉरी पाइवट टेबल को एक्सप्लेन करेंगे। सिंपली इसका एक ग्लिम्स आपको मैं दे देता हूँ कि एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप चूज करते हैं, तो ये चूज कनेक्शन आपको मांगेगा कि आप किसी अदर वर्कबुक या अदर सर्वर से अगर आपको कोई डेटा लेना हो, जैसे किसी अदर वर्कबुक से, नेटवर्क फाइल से, एसक्यूएल सर्वर से, तो वो आप जैसे हम नेटवर्क चूज करते हैं एंड ब्राउज फॉर मोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है। ब्राउज करते ही आप देखेंगे यहाँ पे एक फाइल खुल जाएगी, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेटा कनेक्शन फाइल है। इसके थ्रू आप सीक्वल सीक्वल सर्वर या किसी चीज पे न्यू सोर्स से भी आप कर सकते हैं। ओपन जैसे ही आप करेंगे तो ये आपको सर्वर नेम मांगेगा, ऑथेंटिकेशन मांगेगा, और ये चूज करते ही आपको सीधे फिनिश जब करेंगे तो आपको ये डेटा जो विजार्ड खुला हुआ है, ये आपका एक सेपरेट कनेक्शन को स्टैब्लिश कर देगा। फिर उस कनेक्शन में जो भी फाइल्स अवेलेबल होंगी उसके आप जरिए काम कर सकते हैं। ये डेटाबेस सीक्वल सर्वर आगे पढ़ेंगे हम फर्दर वीडियो में अपने। तो इसके बाद देखते हैं इंसर्ट टैब के बाद इसमें हमारा डेटा मॉडल भी है। डेटा मॉडल भी बहुत ही एक सिंगल वीडियो में ये नहीं कवर हो पाएगा, बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। रिकमेंडेड पाइवट टेबल में जब आप देखेंगे कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग ये अलग-अलग पाइवट टेबल आपको दे देगा, जिसमें वो देखेगा कि कौन-कौन से हेडिंग के अकॉर्डिंग हमारी कौन-सी डेटा विजुअलाइज़ हो सकती है। जैसे कि ग्रुप के अकॉर्डिंग, ग्रुप में ये उसके अंदर आइटम के अकॉर्डिंग, देन अगर जीएसटी सेल्स की ऐसे अगर अलग-अलग टैक्सेबल आइटम्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। किसी को भी आप चूज़ करके बस सिंपली यहाँ पे जैसे देखेंगे ग्रुप वाइज़ है, ओके हिट करते ही आपका ये डेटा एंटर हो जाएगा और वो समराइज़ आपको मिल जाएगा। सो थोड़ा बहुत इनबिल्ट इसमें जो कस्टमाइज़ेशन है वो आपको बहुत काम आएँगी। ये वीडियो हमारी यहीं पे एंड हो रही है, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंसर्ट टैब के अदर टूल्स के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।